નમસ્કાર, હું પ્રવીણ. આજની ક્રિકેટની દુનિયામાં હેવી ડોઝ છે ક્રિકેટનો, પરંતુ આજે પણ એ ચેપ્ટર યાદ આવે કે જ્યારે 80 પછી 83માં ભારતીય ટીમ લોર્ડ્સના ઐતિહાસિક મેદાન પર ક્રિકેટના મક્કા પર વર્લ્ડ ચેમ્પિયન બની. ઘણા સપનાઓ આપ્યા આવનાર જનરેશન્સને. ઘણા બધા સ્પોર્ટ્સમાં એ પછી ભારત કેમ પાવર હાઉસ છે વિશ્વ ફલક પર તેની ચર્ચા થઈ. 2011માં આપણે ચેમ્પિયન બન્યા. 1932માં ભારતીય ટીમ ઇંગ્લેન્ડ સામે પ્રથમ ઓફિશિયલ ટેસ્ટ રમી. તે બાદથી ઘણા બધા દિગ્ગજ નામો આવ્યા, ઓલરાઉન્ડર્સ આવ્યા, દિગ્ગજ બેટ્સમેનો આવ્યા અને વિકેટ કીપર્સ પણ આવ્યા. આ તમામ વચ્ચે ફારૂક એન્જિનિયર પછી સૈયદ કિરમાની એક એવું નામ કે જે કદાચ આ જનરેશન પણ એટલું જ ઓળખે છે અને આજના ક્રિકેટના શોર્ટર ફોર્મેટમાં જ્યારે 70 કે 80ના દશકામાં 90ના દશકામાં જે પ્રકારનું ક્રિકેટ હતું, જે ચેલેન્જીસ હતી, એ ચેલેન્જીસમાં 1983ના વર્લ્ડ કપમાં ઝિમ્બાબ્વે સામેની કપિલ દેવની એ ઇનિંગ 175ની, તેમની સામે મહત્વની ભાગીદારીમાં મદનલાલ, રોજર બિન્ની કે પછી ખુદ સૈયદ કિરમાની. વિકેટ્સ પાછળ એન્ટિસિપેશન એ સમયમાં, અને એન્ટિસિપેશન કદાચ ત્યારે તો મારો જન્મ પણ ન હતો, પણ એ એન્ટિસિપેશન આટલી ટેકનોલોજી ન હતી છતાં પણ આજે પણ યથાર્થ છે. અને ખરેખર એ એરાની જે મોમેન્ટ્સ છે હંમેશા દરેક ક્રિકેટ ફેન્સ માટે યાદગાર બની રહે છે, લાઈફનું સંભાળણું બની રહે છે. અને દરેક ક્રિકેટ ફેન્સ સૈયદ કિરમાની વિશે જાણવા એટલા આતુર હતા કેમ કે તેમની એક બુક આવી રહી છે જે આવતીકાલે રિલીઝ થઈ રહી છે, ઓટોબાયોગ્રાફી સ્ટમ્પ્ડ. એ ઓટોબાયોગ્રાફી આવતીકાલે 1983ના ભારતના વિશ્વ વિજેતા ટીમના કેપ્ટન કપિલ દેવના હસ્તે તેનું વિમોચન થઈ રહ્યું છે. દિગ્ગજ ક્રિકેટરોની પણ હાજરી હશે અને ગુજરાત સમાચાર GSTVના સિનિયર જર્નલિસ્ટ અને સાથે જ આ ઓટોબાયોગ્રાફીના કો રાઇટર દક્ષેશભાઈ પાઠક પણ આ બુક સાથે જોડાયેલા છે, તેમનું કન્ટ્રીબ્યુશન પણ છે. તો આજે જ સીધા વાત કરીએ. આપણી સાથે એક્સક્લુઝિવલી ધ વન એન્ડ ઓનલી સૈયદ કિરમાની જોડાયા છે અને અમારા સિનિયર જર્નલિસ્ટ દક્ષેશભાઈ પાઠક પણ તેમની સાથે છે. બંને ફ્રેમમાં સારા લાગી રહ્યા છો અને એ સાંજે કે જ્યારે આવતીકાલે દક્ષેશભાઈ એ બુક નું વિમોચન થઈ રહ્યું છે તો એમના માટે તો પહેલા કિરી સર અને આપને બંનેને ધન્યવાદ, પૂરી ટીમને ધન્યવાદ અને વોર્મ વેલકમ ટુ GSTV गुजरात समाचार. किरी सर, किरी सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही. प्रवीण, स्पीक लाउडली एंड स्पीक इन हिंदी. ओके किरी सर, कल की बुक और इन सब के बीच में क्रिकेट लवर्स, मैं थोड़ा लाइटर टोन में बात कर रहा हूँ, क्रिकेट लवर्स इतने सालों से वेट कर रहे थे कि किरीदा की बुक आए, मतलब ऐसे अंदाज में आए कि जहां से वो वक्त, जो वक्त आज भी अगर महसूस करे, आज की जनरेशन भी महसूस करे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं. वो दौर में किरीदा और वर्ल्ड चैंपियन टीम, ऐसी यादगार बातें, ऐसी यादगार चीजें जो कल रिवील होने वाली है. सबसे पहले तो लाइटर टोन में ये पूछना चाहूंगा कि देर लगा दी सर, ऑन अ पॉजिटिव नोट. ये बुक आने में देर क्यों लगा दी? क्योंकि लोग 25 साल से इंतजार कर रहे हैं. देखिए, हिंदी में कहावत है कि देर आए दुरुस्त आए. तो ये काफी टाइम लगा मेरे को, जबकि मैं मेरे दोस्त, मेरे खिलाड़ी 83 वर्ल्ड कप के और दूसरे खिलाड़ी, आइकॉनिक खिलाड़ी जो अपने ऑटोबायोग्राफी वगैरह जो लेके आ रहे थे, दे इंस्पायर्ड मी कि यार जब ये लोग अपनी ऑटोबायोग्राफी लिख रहे हैं तो मैं क्यों नहीं लिखूं. तो टाइम इसलिए लगा मेरे को क्योंकि कई चीजें बीच में, कई हादसे आने लगे, कई इंसिडेंट्स मिले मेरे को. 4 साल लगे मेरे को ये कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि जब भी मैं बैठा लिखने के लिए कुछ ना कुछ एक टूर्नामेंट निकल जाता है, कुछ ना कुछ एक कमिटमेंट निकल जाता है, जिसकी वजह से देर हो गई. मगर आई थिंक हर चीज के लिए टाइम लिखा गया है. ये टाइम जो है ना,
ये भगवान के हाथ में है क्या नहीं? जी तो ऑन दैट काउंट ये बहुत ही सही टाइम पे निकलाई है मेरी ऑटोबायोग्राफी। और इसमें कई इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल हादिसे हैं इसमें। और बिल्कुल दिस इज अ स्टोरी अनटोल्ड, द ट्रू फैक्ट्स विदाउट एनी बायस और प्रेजुडिस। तो इसमें किसी को देयर इज नो सच इंसिडेंट इन द बुक which could hurt the feeling of anybody. जी सर, दक्षेश जी भी है आपके साथ, लेकिन दक्षेश जी आपके पास सवाल लेके आऊं उससे पहले किरीदा से एक सवाल था, क्योंकि जो ऑटोबायोग्राफी का पार्ट है वो देवाशीष सेन गुप्ता ने लिखा है। तो सर से सिर्फ यही गुजारिश है कि उस चैप्टर के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि थोड़ी एक्साइटमेंट भी है, कुछ चीजें हैं जो पब्लिक डोमेन में शायद नहीं होगी। ये उनका ये बहुत ऑटोबायोग्राफी पार्ट देवाशीष ने लिखा है, तो जो चीजें लोगों ने अभी तक स्टोरी अनटोल्ड कैसी कैसी चीजें है वो तो कुछ इंटरेस्टिंग एनेक्डोट्स पूछ रहा है। हाँ जी, देखिए अब फिलहाल मैं कुछ एनेक्डोट्स बोलना नहीं चाहूंगा, क्योंकि अगर बोल दिया तो जो मेरी आवाज सुन रहे हैं और जो मेरे को देख रहे हैं वो किताब खरीदेंगे नहीं। क्योंकि कई कई हादिसे हैं उसके अंदर, और बेहतरीन हादिसे हैं, बेहतरीन स्टोरीज उसके अंदर हैं, कहानियां हैं उसमें। मेरी गाइडलाइंस युवा खिलाड़ियों के लिए है, गाइडलाइंस कोचिंग है उसके अंदर, और कई चीजें हैं एनेक्डोट वगैरह। अगर आप फिलहाल मेरे को याद नहीं आ रहा है कि कौन सा एनेक्डोट मैं बताऊं। बस यही कहूंगा कि मैं मेरे क्रिकेट फैंस और क्रिकेट लवर्स जो हैं सारी दुनिया में, जहां पे मेरे को देख रहे हैं और मेरे को सुन रहे हैं, कि आप ये मेरी ऑटोबायोग्राफी जो है ना, ये किंडल्स में ऑनलाइन मौजूद है, अमेजोन में ऑनलाइन मौजूद है, और बड़े बड़े बुक हाउसेस में इट्स ऑलरेडी ऑन द स्टैंड्स में आ चुके हैं ये। और हिगन बॉटम्स जो होती है, जो द ह्यूज बुक हाउस है ये, तो वहां पे हासिल कर सकते हैं ये मेरी किताब। और उसके अंदर वो अगर बोल दिया ना तो मजा चले जाएगा। नहीं, ये हम नहीं, वो लिमिटेशन रखते हैं, और टेलर और टीजर का भी वो एक पोर्शन होता है। दक्षेश जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि गुजरात समाचार और जीएसटीवी के सीनियर जर्नलिस्ट है आप, और ये पूरे गुजरात के जर्नलिज्म के लिए प्राउड मोमेंट है, आपको ऑथर है। एक गुजराती जर्नलिज्म से, क्रिकेट से तो आप जुड़े हुए इमोशनली भी और मेंटली भी, एज अ राइटर खेल भी चुके हैं, लेकिन गुजराती जर्नलिज्म में से एक ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी दोनों कंबाइंड है, मतलब जहां तक मैंने बात सुनी है, वो लिखना। और सैयद किरमानी जैसे क्रिकेटिंग कैरेक्टर्स को, मतलब पन्नों में, मतलब राइटिंग में अपने हिसाब से उसको जस्टिफाई करना, न्याय देना उस कैरेक्टर को, कितना चैलेंजिंग रहा और कितना एक्साइटमेंट भरा रहा? प्रवीण, इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। मैं इस चीज को इस तरह देखता हूं कि आप लोगों ने मेरी गुजरात में करियर देखी है 30 साल की, 2000 से ज्यादा इंटरव्यूज और एक्सक्लूसिव स्टोरीज, उसको आप एक पल्ले में रखिए, और एक पल्ले में किरीदा की बायोग्राफी पार्ट जो मैंने लिखा है उसको रखिए। ये पल्ला इधर झुक जाता है। क्यों? क्योंकि सईद किरमानी इज नॉट ओनली ए विकेट कीपर, बट he is a phenomena in terms of a fantastic wicketkeeper as well as a person. I have interviewed 18 great people in my life, but very few matches the aura of Saeed Kirmani, despite achieving so much in life and staying so humble. बहुत कम लोग मैंने ऐसे देखे। एंड हम लोगों में ये कहा जाता है कि जीवन में, और किरीदा ने एक बहुत अच्छी बात कही कि हर चीज का एक टाइम होता है, और हर चीज पे हर वक्त आप जो भी करते रहते हो, आपके पीछे लोग जज करने के लिए बैठे रहते। करने दो, आपकी कॉन्शियस और आपकी कंसाइंस में क्या चल रहा है वो आपको पता होता है कि मैं किधर जा रहा हूं। तो
किरीदा, थैंक्स कि आपने जो बहुत बड़ी बात कही है कि हर चीज के लिए सही वक्त और वो तय करता है। हाँ, बिल्कुल। तो उसने तय किया कि मैं अपनी करियर में 55 से लेके जब से जर्नलिज्म में आया 4 बार किरीदा का इंटरव्यू करूं, उनके मन में मेरी मेमोरी रहे, और वो मुझे 6 साल पहले फोन करे कि दक्षेश, आई एम प्लानिंग टू राइट माय ऑटोबायोग्राफी एंड यू विल राइट इट एज अ को राइटर। मैं उनको ये पूछूं कि किरीदा, यू नो मी एज ए जर्नलिस्ट वर्किंग विद अ लीडिंग गुजराती न्यूज़पेपर and this book would be in English. How could you judge or decide that I am able to do that? तो उन्होंने जो कहा था वो आज भी मुझे याद है कि हर आदमी जो बोलता है, जो करता है, एक ट्रेल छोड़ के जाता है। आपने जिस बार मेरा इंटरव्यू लिया, आपकी लैंग्वेज, सवाल और आपका रिसर्च मुझे इंप्रेस करके गया था, और आप बोल रहे हैं कि आप गुजराती न्यूज़पेपर से है, बट टू मी योर इंग्लिश इज बियॉन्ड फाइन। तो आप लिखेंगे। तो दिस वे इट स्टार्टेड। 5 साल लगे इसको लिखने में, एंड इट इज अ ग्रेट फुलफिलमेंट। और फिर से मैं बताता हूं कि विकेट कीपर्स तो कल भी हुए, आज भी है और कल भी होंगे। ये देखिए, ये मेरा सौभाग्य था कि जब मैंने डिसाइड की कि मैं अब शुरू करूंगा मेरी ऑटोबायोग्राफी लिखने के लिए, तो जो इंटरनेशनली रिनोन्ड ऑथर जो है देवशीष सेनगुप्ता, उनकी बुक को मैंने लॉन्च किया। उन्होंने मेरे को ऑनर दिया कि भाई काइंडली लॉन्च माय बुक। उस दौरान मैंने उनको कहा, ये 4 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं आपसे, कि उन्होंने कहा कि भाई अब गिव मी दिस ऑनर, आई विल राइट फॉर यू, you just record your entire life journey और मैं लिखूंगा। और साथ साथ में अब मेरी पूरी क्रिकेटिंग की जर्नी कौन लिखेगा? मेरा सौभाग्य था कि मैं दक्षेश पाठक को जो मिला, कहाँ मिला आपको ज्यादा याद रहेगा, तो उन्होंने कहा कि इट विल बी माय प्लेजर किरी भाई, और किरीदा, ही कॉल्स मी किरीदा आल्सो। तो उन्होंने कहा कि आई विल कंप्लीट ऑल योर एंटायर क्रिकेटिंग जर्नी, पूरे स्टैटिस्टिक्स, इतने मजेदार उन्होंने एनेक्डोट्स के साथ इस किताब में लिखी है। तो मैं इन दोनों को राइटर्स का बेहद शुक्रगुजार मैं, और मेरे पास अल्फाज नहीं है, शब्द नहीं है कि मैं इनका शुक्रिया अदा करूं। अगर ये दो मेरे साथ ना देते, मेरी बेटी भी इसमें साथ है और मेरे सन इन लॉ भी इसमें साथ है, ये टीम जो है ना, 4 जन की टीम, बगैर उनके ये मेरी ऑटोबायोग्राफी मुकम्मल ही नहीं हो सकती। तो मैं मेरी टीम का बेहद शुक्रगुजार हूँ, जो अपना इतना वैल्यूबल टाइम निकाल के जो इन्होंने मेरी बुक को कामयाबी हासिल की है। ओके किरीदा, प्रवीण, मैं तो ये कहूंगा कि किरीदा के शब्दों में उन्हें वापस दूंगा कि सम्मान तो आपने हमें दिया है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि एक सेकंड ये बात बाजू पे रख दो कि मैं इस बुक का को राइटर हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत का 10,000 साल का जो इतिहास है प्रवीण, उस 10,000 साल में वेद, उपनिषद, महाभारत, रामायण की रचना से लेके महावीर बुद्ध से लेके महात्मा गांधी से लेके 1947 की फ्रीडम से लेके 1983 तक, अगर आप 10 घटनाएं ऐसी देखने जाओ कि जिस घटनाओं ने पूरी दुनिया को भारत के प्रति एक अलग रिस्पेक्ट से देखने का नजरिया दिया, उनमें से एक घटना 1983 वर्ल्ड कप, और उसमें सबसे बड़ी घटना कपिल देव 175 नॉट आउट, बट द ग्रेटर पार्ट वाज सईद किरमानी स्टैंड विथ हिम फॉर द 9th विकेट। 140 पे 8वीं विकेट गिरी, मदन लाल आउट हुआ, और किरीदा क्रीज पे जाके कपिल को जो बोला वो बुक में लिखा है। अगर किरीदा ने कपिल का सपोर्ट नहीं दिया होता तो ना हम कपिल की वो इनिंग देखते, ना हम सेमीफाइनल में जाते, और जिस दिन कपिल देव ने वर्ल्ड कप हाथ में लिया, मुझे नहीं लगता कि वो जो फीलिंग हम लोग स्कूल में पढ़ते थे वो याद करते रोंगटे खड़े हो जाते। शब्द झूठ बोलते, रोंगटे झूठ नहीं बोलते, आज भी खड़े हो जाते। तो ये सईद किरमानी, ये हमारा सद्भाग्य रहा है किरीदा कि आपने हमें
ये एक बहुत ही बड़ा यू gave us the work of career. तो प्रवीण ये चीज है। और ये जो बुक है, मैं ये बोल रहा था गिरिधा कि विकेट कीपर्स तो काफी आए हैं और आएंगे, बट रिफ्लेक्सिस के मामले में मैंने अपनी जिंदगी में, क्योंकि हम लोग फरूक इंजीनियर के बाद की जनरेशन है, मैंने उनको लाइव देखा है, मैंने एक ही विकेट कीपर रिफ्लेक्सिस के बारे में देखा। गिरिधा के बाद 42 विकेट कीपर्स इंडिया के लिए इतने सालों में खेले, 38 सालों में। पर मैं आज कैमरे के सामने चैलेंज करता हूं कि चंद्रशेखर, वेंकटराघवन, बिशन बेदी, प्रसन्ना, दिलीप दोषी, शिवलाल यादव, मनिंदर सिंह, इन स्पिनरों में से खास करके चंद्रशेखर, जिसकी स्पीड अनप्रेडिक्टेबल 130 से 145 तक आती थी, उनके सामने विकेट पे खड़े रहकर बेल्स उड़ान आज का कोई विकेट कीपर 400, 500, 600 डिसमिसल्स क्यों नहीं, वो करके दिखाए। टाइम ट्रैवल से ले जाके 25 साल का उसको बना के खड़ा करो। और उसके बाद कपिल देव, मदन लाल, करसन घावरी, रॉजर बिनी, चेतन शर्मा, बलविंदर संधू, इवन युवराज सिंह एंड टू सम एक्सटेंट कुछ स्पेल में टी शेखर और बी अरुण, इनके और रणजी ट्रॉफी में आप देखो तो जवागल सिन्हा, डेविड जॉनसन, ये जो वेरिएशंस स्पीड और स्पिन का सईद किरमानी ने विकेट के पीछे जो कंफर्ट, जो ईज और जो एक्सीलेंस के साथ जो किया है ना, दैट पुट्स हिम एट द बेस्ट इन 143 इयर्स ऑफ क्रिकेट हिस्ट्री। अगर इस वेरिएशन में उनके नजदीक कोई आ सकता है तो वसीम बारी, क्योंकि वसीम बारी ने भी उस तरह के स्पिनर्स और फास्टर्स को पीछे से फेस किया है। बट गिरिधा इंड्यूस्ड ए सबकॉन्शियस फियर amongst the batsmen। अगर बॉस इफ यू क्रॉस द लाइन इवन ए मिलीमीटर, आपका रुख पेविलियन की ओर मुड़ेगा। दैट इज व्हाई सईद किरमानी स्टैंड्स द बेस्ट फॉर मी। एंड अगेन आई एम हम्बल्ड, आई एम सो ऑनर्ड गिरिधा, दिल से कि, और ये भी नहीं है प्रवीण कि जैसे उन्होंने कहा कि सब कुछ एक पानी के प्रवाह की तरह था। उनकी करियर के साथ भी काफी खेल खेलने की कोशिश की गई 1979 वर्ल्ड कप और इंग्लैंड टूर में। तो उसके बाद पता चला कि गिरिधा नहीं होते तो क्या होता है। उस वक्त मुझे आज गिरिधा वसीम बरेलवी की एक लाइन याद आती है, वसीम बरेलवी शायर की एक लाइन याद आती है कि आंधियों के इरादे तो अच्छे ना थे, ये दिया कैसे जलता रह गया। अरे वाह, क्या बात, वाह वाह, क्या बात। तो ये है कि आपका एक्सीलेंस आप कोई डिस्टर्ब कर सकता है, छीन नहीं सकता है। अगर आप में एब्सोल्यूट टैलेंट है तो स्टेज बदल जाएगा, आपकी कला कहीं नहीं जाएगी। तो दिस इज किरमानी फॉर यू। एंड और बोलिए दर्शक जी, यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा यहाँ पे कि विकेट कीपिंग की काबिलियत जब भी देखी जाती है जबकि वो कोई भी विकेट कीपर स्पिनर्स को ऊपर जब खड़ा रहता है। ठीक है, कोई भी आप भी फास्टेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड को आराम से कलेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस जो फासला जो होता है फास्ट बॉलर और विकेट कीपर में काफी फासला होता है। तो वहां पे आप आराम से अपने एंटिसिपेशन, मूवमेंट, रिफ्लेक्सेस, एजिलिटी एडजस्ट कर ले सकते हैं। मगर जब आप ऊपर खड़े रहते हैं किसी भी स्पिनर को, तो एक फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड में आपको सिंक्रोनाइज करना पड़ता है 4 कोऑर्डिनेशंस, राइट, फ्रॉम द टाइम जब गेंद बॉलर के हाथ से निकलता है, वहां से दिमाग में विकेट कीपर के यार ये कहाँ पिच होएगा, कितना टर्न होएगा, डिपेंडिंग ऑन द बाउंस ऑफ द पिच, और बैट्समैन कौन है सामने, वो सब ध्यान रखते हुए ये विकेट कीपर की एजिलिटी, रिफ्लेक्सेस और उसका मूवमेंट, एंटिसिपेशन पे सवाल होता है। जब हर चीज पूरे कोऑर्डिनेशंस बराबर से होते, सिंक्रोनाइज जब होते हैं, तो सही कलेक्शन होता है विकेट के पीछे, इधर स्टंप के मानिंद या कैच के मानिंद। तो उस लिहाज से 1983 वर्ल्ड कप में, ये दिस इज इन द बुक, ये एक एनेक्डोट, एक हादसा सुना रहा हूं मैं हमारे व्यूअर्स को, कि जब हम जीते
सबसे बड़ा सबसे आला खुशी जो हम सबको जो हुई जब हमने वर्ल्ड कप जीता, और उसके बाद गॉडफ्रे एवंस ऑफ इंग्लैंड, अभी वो 1-2 साल हो गए गुजरे हुए, तो उन्होंने अपनी टीम जो जूरी थी टू सेलेक्ट द बेस्ट विकेट कीपर इन द वर्ल्ड, जिसको मैंने द बेस्ट इन द वर्ल्ड जो मैंने मान रहा था, वो एलन नॉट है, बॉब टेलर है, रॉडनी मार्श है, वसीम बारी है पाकिस्तान की। तो इन चारों को मैं नंबर 1 इन द वर्ल्ड ऑन द सेम प्लेटफॉर्म पे मानता था। तो ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप ये सारे के सारे बैठे वहां पे जूरी और डिसाइड करे कि भाई हु शुड वी कंसीडर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो सारे के सारे गॉडफ्रे एवांस जो है ना, ही वाज कंसीडर्ड द ऑल टाइम ग्रेट विकेट कीपर द वर्ल्ड हैज एवर सीन फ्रॉम इंग्लैंड। तो इन्होंने सारे के सारे जूरी मिलकर इनको कहा कि भाई किरमानी शुड बी अवॉर्डेड द बेस्ट विकेट कीपर इन द वर्ल्ड अवार्ड। तो ये सबसे बड़ा बेहतरीन बेस्ट मोमेंट पर्सनली मेरे को रहा कि आई वाज अवॉर्डेड द बेस्ट विकेट कीपर इन द वर्ल्ड ए सिल्वर ग्लव, उसके अंदर सिल्वर बॉल, नीचे लिखा हुआ वहां पे प्लेट है, आप लोग वो देखेंगे, फोटोग्राफ भी देखेंगे मेरी ऑटोबायोग्राफी में। तो इससे बड़ा ऑनर मैं नहीं समझता किसी आज तक किसी विकेट कीपर को ये अवार्ड नहीं दिया जी। ये सब पूरे ऊपर वाले की देन है जो भी मैं आज तक हूँ। तो इसमें पैदाइशी से लेकर अब तक जी इस किताब में मौजूद है पूरी स्टोरी जी। और उसमें दक्षेश पाठक ने जी पूरी एनेक्डोट्स के साथ पूरी कहानी इन्होंने मेरी जर्नी ऑफ माय क्रिकेटिंग करियर इन्होंने लिखी। ओके सर, थोड़ी समय की पाबंदी है लेकिन इट्स एन ऑनर टू टॉक विथ यू, और काफी इंतजार रहेगा और अभी तो एक रात बाकी है, कल बुक सामने आएगी। सर कंक्लूडिंग कमेंट अगर 20-30 सेकंड में। प्रवीण, एक आपने पूछा बुक के बारे में, एक रिकॉर्ड मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा, लोगों को थोड़ी क्यूरियोसिटी होगी कि विकेट कीपर सबसे बढ़िया कौन होता है, कि जिसके जितने डिसमिसल्स होते हैं उसमें से कैचेस और स्टंपिंग का जो रेशियो होता है, वो आप एवरेज देखिए 140 साल से तो 95% रहता है। गिरिदा का रेशियो है 198 डिसमिसल्स, उसमें से 160 कैचेस और 38 स्टंपिंग्स। तो ये 20% स्टंपिंग का रेशियो आप देखिए, व्हाट काइंड ऑफ विकेट कीपर शेख किरमानी वाज, एंड आई डोंट थिंक एनीबॉडी विल एवर बी एम्यूलेट दैट। तो या दिस इज इट। Seriously, it's an honor to chat with you, sir, and Dakshesh ji, you too. અને કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ જીએસટીવી તરફથી પણ, અને જીએસટીવી ગુજરાત સમાચાર માટે પણ પ્રાઉડ મોમેન્ટ. વી હોપ કે જે યંગસ્ટર્સ છે એમના માટે ઘણા બધા ચેપ્ટર્સ હશે કે અત્યારના ક્રિકેટમાં પણ જ્યારે ભૂતકાળના સંઘર્ષો વિશે વાંચતા, પરિસ્થિતિઓ વિશે વાંચતા જે ટિપ્સ આપવામાં આવી હશે કે જેને પણ કરિયરમાં કામ લાગે. અને હોપફુલી વી આર વેઇટિંગ ફોર મોર એક્સાઇટિંગ ચેપ્ટર્સ रिगार्डिंग बुक्स इन अपकमिंग टाइम. धन्यवाद दक्षेश जी, धन्यवाद किरीदा. कल आपको लिंक भेजेंगे। श्योर सर। जी हाँ, आप इस मौके का फायदा उठाते हुए मैं सारे दर्शकों को, सारे जो मेरी आवाज और मेरे को देख रहे हैं, उन सबको नए साल की शुभकामनाएं मैं पेश करना चाहूंगा। मे गॉड ब्लेस यू विद गुड हेल्थ एंड हैप्पीनेस इन द इयर्स टू कम. ओके, थैंक यू वेरी मच सर. धन्यवाद किरीदा, धन्यवाद दक्षेश जी. तो आ था 1983 વર્લ્ડ ચેમ્પિયન ટીમના એ કિરદાર કે જે આજે પણ એટલા જીવંત છે કેરેક્ટરની દ્રષ્ટિએ, અને આજે પણ તેના સંઘર્ષની વાતો અથવા તો એ સમયના ક્રિકેટની વાતો જ્યારે બુક થકી આવતીકાલે સ્ટમ્પ્ટમાં તેમની બાયોગ્રાફીમાંથી બહાર આવશે તો એ કરોડો ક્રિકેટ ફેન્સને એ જ ઇન્સ્પિરેશન આપશે. અને એટલા માટે જ આજે આ સેશનનું આયોજન કરાયું. આવતીકાલે કપિલ દેવના હસ્તે વિમોચન થઈ રહ્યું છે બેંગલુરુમાં શહીદ કિરમાનીની
ઓટોબાયોગ્રાફીનું. આ સાથે બુલેટિનમાં હાલ બસ આટલું જ. નમસ્કાર.